Hello everyone. This is Deep Mehta, associated with India's first startup university, that is Swarnim Startup and Innovation University, as Startup Affairs and Outreach Head. A few days back, we have talked on scope of startups in pharmacy, health science, science and technology sectors. And I must say, it was a very informative and educating session, especially for students, budding entrepreneurs, and educational professionals. Today, we are going to talk on role, importance, and strategies of branding to choose in startup so to make them successful. We have also scheduled a couple of more sessions on patent, legal, finance, outreaching, company formation procedure, elements in startups, because startup is a vast concept. So there are different elements in startup which Swarnim Incubation Center try to cover all the topics with the eminent speaker so that it goes to the our target audience, budding entrepreneurs, and they can find it very useful for their formation of the company and make them in a successful venture. I appeal all of you to get connected with Swarnim Startup and Innovation University's official Facebook page for the further updates. We promise you will take away a mammoth learning and important come to know important elements of startups and innovation conveyed by our eminent speakers. Friends, branding is very important because not only it makes a memorable impression on consumers, but it also allows your customers and client to know what to expect from your company. It is a way of differentiate from the competitors and clarifying what you offer, and that makes them the better choice in their selection list. Today in the digital world, the concept of branding, advertising, marketing have completely changed, completely transformed from the traditional approach. Branding is not restricted in business enterprises these days, but also on individual personality achievements. Political parties' victories are also dependent upon the marketing and campaigning strategies they have carried out. Branding is like an ocean, having lots of concepts, strategies to adopt and execute at various stages in the business enterprise. Branding create trust. It supports the advertising. It also inspire your employees, support financial values. Branding help the organizations to stay ahead in the competitive world. Today we have with us Dr. Swati Joshi as an eminent speaker to talk on brand as architecture in startups. I would like to welcome Dr. Swati to the Swarnim Talk. Dr. Swati, you are most welcome here. I would like to convey sincere gratitude for sparing your valuable time here. Okay. So before we moving ahead, I would like to brief about Dr. Swati Joshi's core experience and expertise. Dr. Swati Joshi has more than 10 years of rich experience and has worked with reputed academic institutions like Sardar Patel University, MIT University. She holds a PhD in green marketing and has a master degree in marketing and branding. She has taught around 38 marketing courses to students, including service marketing, consumer behavior, market research, advertising, and branding. She has accrued total 13 publications. She has been awarded with Gargi Puraskar by Government of Rajasthan. She is also been invited twice to deliver guest lecture on green marketing by Sultanate Oman University. Currently, she is associated with Swarnim Startup and Innovation University as Head of Innovation and Entrepreneurship Department. So, Dr. Swati, let we begin the session hereby with the first question. Is that really necessary to have a marketing, the product and the services, or the startups and the company can even survive without it? Over to you, ma'am. Okay, sir. Thank you. The first question itself is a really nice question that the marketing, is it really required or not? And I must say, without having a single thought, that without marketing,
your company cannot survive in today's cut-short competitive era. So marketing is the base, I can say, and I will support this with the help of a data. I hope you all can see the screen. These are the reasons listed by CB Insights, and they have listed 20 reasons why nowadays all these startups are failing. And from these 20 reasons, if we see top 10 reasons, you can read out those reasons here. And the two major reasons are lack of funding, and second one is the improper marketing strategy. These are the two major reasons. And because of that, all the startups, and not only the startups, but even the big corporates also, after having millions of customers, after surviving in the market for so many years, they all at the end go to trash. Why? Because other competitors, they generally eat them away when they are not able to change themselves with the changing scenario. So that is why marketing is the base. If you want to survive in market, you have to update your marketing strategy. And sir, marketing research is one of the part of marketing only. What is research? You survey your customer, you ask to them that what you actually like in our product, what are your dislikes, how their taste is changing over an intermittent period of time. So until unless you don't conduct the survey with them, you don't ask for their opinion, you don't ask for their feedback, their reviews, you cannot survive. This is the hardcore reality that every brand, every startup must accept. Okay. So they have to do marketing research, they have to survey their customer, and they have to change their marketing strategy accordingly. Here I will support this point with one example also. अगर आप लोगों ने सुना होगा तो eBay was a really nice e-commerce platform. You know, when they entered in India in the year 2004, they got so many, like millions of people as their subscriber. So many visitors were there on everyday basis, and they were really doing well. But then after some time, what happened? They introduced their own payment service, that was called as पैसा पे in the year 2008. अब देखो लॉन्च वो कौन से ईयर में हो गए थे? इन द ईयर 2004. और अपने खुद का शॉपिंग कार्ट, पैसा पे, ये फीचर्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए इन द ईयर 2008, 4 साल बाद. एंड दैट इज रियली लेट. And meanwhile, Amazon, Flipkart, Snapdeal, they all entered into that business, and they were continuously updating their applications, and they captured the market in such a way that it was too late for them to even introduce any new feature in market, and they can catch hold of those lost customers. It was really late, and that is why in no time eBay is out of market. और आपको पता है अभी तो Flipkart ने भी acquire कर लिया eBay को. And even Flipkart is saying ki they are not earning much out of eBay. Means eBay acquisition was not at all profitable for them. तो ये जो कस्टमर का सर्वे है, जो मार्केटिंग रिसर्च है, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है. अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेटिव नहीं बनाया, अगर आपने उसको अपने कस्टमर के टेस्ट और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज नहीं किया ना, तो आई बेट यू दैट योर कॉम्पिटिटर्स विल ईट यू अवे एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. नोकिया का भी यही सीन था. नोकिया वाज स्टिकिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, है ना. और फिर ये एंड्रॉइड वर्जन आ गया था. सैमसंग है, एचटीसी है, उन लोगों ने तुरंत ही एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए, which was a quite user friendly software. And Nokia उस पे स्विच नहीं हो पाया एंड्रॉइड पे. they were little bit late in adopting that. अभी तो वो भी आ गए हैं. तो तब नोकिया सिर्फ हार्डवेयर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. देखो सेलफोन में भी ऐसा रहता है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीजें अपडेटेड होनी चाहिए. तो नोकिया सिर्फ हार्डवेयर पे कॉन्सेंट्रेट करता रह गया. अगर आपको सबको पता होगी तो ऐसा बोलते थे कि नोकिया का फोन ऐसे ऊपर से नीचे गिराओ, बंदा मर जाएगा पर फोन को कुछ नहीं होगा. So they were so inclined towards the hardware part that they almost neglected the software part. They were not able to update. They were not able to move to Android version, and you know the today's scenario, right? So that is why, sir, I feel that marketing is the base.
If you want to survive, if you want to create a unique brand, then yes, marketing is required. Over to you, Mr. Deep. Yeah, thank you so much, Dr. Swati, to share the recent examples of Nokia and many other organizations. And with the passage of the time, how marketing is required for the improvement, betterment, and staying ahead in the competitive world for the any organization. Now, we would like to understand, Dr. Swati, from your throughout the experiences, uh, what the branding exactly? Can you please share the branding definition or the 360-degree branding which are applicable in the industries these times? Oh, yes. Now see, marketing and branding, these two terminologies people nowadays they are using interchangeably. You know, कुछ लोग marketing को branding बोल देते हैं, branding को marketing बोल देते हैं, उनको लगता है कि everything is same, but actually these two are quite different terminologies. अभी marketing is a broader terminology, it is a vast ocean. Marketing के अंदर you have to take care of all the 4 P's, that is called as product, price, place and promotion. Okay, मतलब कि अगर आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट करते हो या चेंज करते हो, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग. अभी मैंने बोला ना कि आपको सर्वे करके यू हैव टू गॉग योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एज पर योर कस्टमर टेस्ट. Then setting a right price is again marketing. Then making your product available in the market with the help of your distribution channel, that is the retailers, wholesalers, वो भी एक marketing का part है. And even the last is promotion, that is the advertisement, वो भी marketing का part है. तो actually marketing देखा जाए तो it is a vast area, but branding is a subset of that, we can say that. Okay, so branding में what we are doing, okay, rather than giving any technical definition what it is there in the book, मैं एकदम layman language में समझाऊंगी, so that because our audience is a mixed group, उसके अंदर students भी है, professors भी है जो किसी दूसरे stream से belong करते हैं, and even there are certain professionals too, right? Okay, तो सबको समझ में आए, I will keep my talk simpler. तो ब्रांडिंग में आपको ये देखना है कि हाउ यू कैन क्रिएट a unique image of your company in the mind of the customers. Now that unique image वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी दूसरे competitors के साथ similar ना हो. So you are able to achieve two different functions with the help of branding. पहला तो आपकी खुद की अपनी कंपनी की यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हो, and secondly you can differentiate yourselves from other competitor. अब ये यूनिक इमेज कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट सर्टेन ब्रांड एलिमेंट्स. Now what are the brand elements? These all are the brand elements which you have to choose carefully by doing a lot of research, and then you have to confirm all of these elements for your brand. सबसे पहला बेसिक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांड नेम. पहले तो आपको अपनी कंपनी के लिए, सपोज कि आप स्टूडेंट हो एंड यू आर हैविंग वन आइडिया इन योर माइंड और मे बी अ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप इन योर माइंड, और आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टार्टअप शुरू करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो ऑब्वियसली आपको अपने कंपनी के लिए एक अच्छा सा ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है. नाउ हाउ टू सेलेक्ट दिस ब्रांड नेम? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली बैठे दिमाग में कुछ भी थॉट आया, सितारा वितारा झिलमिल, और आपने नाम दे डाला कि चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बबली लग रहा है तो रख देते हैं, इट विल वर्क. इट नेवर हैपेंस इन दैट वे. ओके, तो ब्रांड नेम है वो आपको जब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो उसका कुछ अच्छा मीनिंग होना चाहिए, एंड द नेम शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट योर प्रोडक्ट ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये ब्रांड नेम है वो स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के लिए है. अगर सपोज कोई पर्सनल केयर ब्रांड है और उसका अगर Forever 21 नाम रखा है, तो ऐसा लगता है नहीं कि अरे ये टीनेज गर्ल्स के लिए. अगर आपको लॉन्ग टाइम फॉरएवर ब्यूटीफुल रहना है तो यूज अवर प्रोडक्ट. So likewise, you have to select the brand name which are suitable for your product category, which are matching with this. Okay. Secondly, you can have your own slogan. अपन टैगलाइन बोलते हैं ना,
So that tagline also you have to select, and this tagline should reveal your brand meaning. अब टैगलाइन कैसे अपने ब्रांड का मीनिंग रिवील करेगा? तो जैसे कि नाइकी का स्लोगन क्या है? जस्ट डू इट, सबको पता है ना? तो जस्ट डू इट का मतलब क्या है? Don't sit idle like a couch potato. Stand up and work, do exercise, act something in one or the other way. तो उनका ये जो ब्रांड मीनिंग है, दैट इज एथलेटिक परफॉर्मेंस, वो लिटरली उनके स्लोगन से रिवील होता है, कस्टमर को पता पड़ती है कि yes, this kind of brand meaning they want to convey to us via their slogan. Then we have characters also. बहुत सारे ब्रांड्स के अपने खुद के कार्टून कैरेक्टर वो लोग ऐसे सेलेक्ट करके रखते हैं ताकि थोड़ा कस्टमर को इंटरेस्टिंग लगे। जब भी आप उनका एडवर्टीजमेंट देखते हो, उनका कोई प्रिंट एड देखते हो, तो ये कैरेक्टर से ही लोग उस ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो आई एम टेकिंग अ पोल हियर, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि ये जो कैरेक्टर जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इट बिलोंग्स टू विच ब्रांड? ओके, एक कैरेक्टर है, ब्रांड का नेम नहीं लिखा, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में ब्रांड का नेम टाइप करना है। ओके, सो हियर इज द कैरेक्टर। आई एम गिविंग यू 30 seconds टू टाइप द नेम, डू इट फास्ट। I'm watching your comments in my cell phone. Okay, so okay, so shall we go ahead with the next question, Dr. Swati? Okay. Yeah, mean the time, let the students and the participants okay, fine. can answer. हाँ, ठीक है। I will just tell this rest of the two elements, the symbol, logo and the URL. लोगो भी सबको पता है कि मैकडोनल्ड का वो जो सिंबल होता है M करके, दैट इज देयर लोगो। नाइकी का वो जो ऐसे राइट लिखा रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज swoosh इन टेक्निकल लैंग्वेज, इट इज देयर लोगो। तो आपको ये लोगो, ये स्लोगन, ये ब्रांड नेम आपके हर किसी प्रमोशनल मटेरियल पे बॉम्बार्ड करना है कस्टमर को। मतलब आप टीवी पे ऐड दे रहे हो, ये सारी चीजें रिपीट करो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, मैगजीन में दे रहे हो, रेडियो पे दे रहे हो, एवरी नाउ एंड देन वेरेवर यू आर बॉम्बार्डिंग दिस मटेरियल टू योर कस्टमर। तो उससे क्या रहता है, अगर मैंने टीवी पे ऐड देखी, मैकडोनल्ड का सिंबल देखा, नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन रोड और बड़ा सा मैकडोनल्ड का एम लिखा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, तो जब एक की एक चीज कस्टमर के दिमाग पे आप बॉम्बार्ड करते हो ना, तो दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी रिहर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कोई इंफॉर्मेशन रिपीट होती है, तो कस्टमर को वो उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। और एक बार अगर कस्टमर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज चली गई, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। people will recognize you simply by your logo, simply by your slogan, or simply by your color, URL, or your character, or any damn brand element. Okay, yes sir, over to you, you can ask next question. Yeah, it was really a very educating information given by you, because the punchline, logo, slogan, design, color, that ultimately represent the organization and represent their vision, mission, their ongoing activities, and define their cultures. So I am very sure the audience who are with us right now, they're taking the note of the same. And of course, during next stage of the time, they will engage with us with your questions and give the appropriate answer also. So, Dr. Sadiq, my next question is, see, startup is a very young enterprise. Like if any entrepreneur if any student has developed any thought, these are the innovative, and they are in a process of registering with the incubation center, and they are working on the POC level, proof of concept, and from there to business model level. So with the small enterprises and young enterprises, how the branding and marketing play a very important role, and at which stages, various stages, they play the important role, that I would like to understand. Okay,
Yes, sir. This is again a very nice question है ना. Students will be attracted towards this क्योंकि ये उनके काम की चीज है. It is always said कि marketing is a costly affair और होता भी है, no doubt, okay. But अभी सिनारियो चेंज हो गया है. Now it is no longer a hardcore fact कि आपके पास lakhs का बजट होना चाहिए तभी आप मार्केटिंग या ब्रांडिंग कर सकते हो, otherwise it is not possible. Now the scenario has changed. There are so many mediums which the young entrepreneurs or even the students with their startup they can also use at such a minimal rate or maybe at free of cost, and they can market their products well in market. Okay, so for that we have digital marketing, sir. Here I will show you some of the tools of digital marketing. Just a second. Okay, no worries, it is not listed here, but I will tell you orally. Digital marketing here we have is number one, email marketing. Email, you all know that it is quite cheaper way to communicate your products and services to your customers. और स्पेशली जनरली जब भी मतलब आपकी कोई सर्विसेज ऐसी है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टअप लेके आते हैं एचआर सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब कि रिक्रूटमेंट और हायरिंग से रिलेटेड. तो देयर जॉब इज कि वो इस तरह से एक फॉर्म ओपन करते हैं एंड दे कलेक्ट द रेज्यूमे ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट, और जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो दे फुलफिल दैट. तो उनके लिए ये बेस्ट है कि आप जितने भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उन सबके एचआर मैनेजर को एक ईमेल छोड़ दो बाय लिस्टिंग ऑल योर सर्विसेज, बाय लिस्टिंग द प्राइस, और उसके साथ कोई पीडीएफ अटैचमेंट डाल सकते हो किसी कंपनी के किसी दूसरे क्लाइंट का जिसके साथ आपने काम किया है, उनका अगर रिकमेंडेशन लेटर है आप वो अटैच कर दो, देन ऑल्सो इट विल वर्क, और सीधा आप ईमेल शूट कर दो. दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट वे. और अगर मैं आपको बताऊं ना तो देखो रेट ऑफ रिटर्न, अपने को ऐसा लगता है कि ईमेल मार्केटिंग इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव, बट ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ईमेल मार्केटिंग का सबसे ज्यादा है. Why? Because it is the mode which is free of cost. आपको कुछ भी पैसा नहीं देना. That is why. तो इसका $40 है comparative to other digital marketing tools that are available. इवन मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हैं सर. आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बिजनेस अकाउंट ओपन होते हैं and you can market your services via WhatsApp only without again spending much money into that. There are certain banner ad, उसके लिए थोड़ा बहुत expense लगता है, but that too is a way lower rather than the taking space on the hoarding or on television or on radio. जो ट्रेडिशनल मोड है उससे तो ये सारे मोड सस्ते ही है for sure. इवन बहुत सारे कंपनीज होते हैं वो लोग दे आर डिजाइनिंग देयर ओन कैटालॉग. और वेस्टर्न नेशन में तो मैं बताऊं ना सर, दिस इज द मोस्ट मतलब पॉपुलर मेथड ऑफ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स. वो लिटरली अच्छे क्वालिटी का एक कैटालॉग रेडी करते हैं. सपोज कि कोई बुटीक फॉर्म है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसका फैशन डिजाइनिंग में अच्छा ग्रास्प है एंड शी इज मेकिंग नाइस क्लोथ्स, नाइस गाउन्स, तो वो क्या करती है अपने ये सारे प्रोडक्ट्स किसी सिंपल मॉडल पे पहना के उनका फोटोशूट करके एक कैटालॉग रेडी करते हैं and they are simply sending this catalog either in soft copy or in hard copy to other prospective buyers. और उनको वो कैटालॉग से ही हर एक कैटालॉग पे नंबर रहता है कि प्रोडक्ट नंबर 223, और सीधा उस प्रोडक्ट नंबर पे वो ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड शी हैज टू सेंड दैट. इवन बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले होते हैं ना, वो भी कैटालॉग भेज देते हैं. वेस्टर्न नेशन में ऐसा रहता है कि कोई टारगेट है या कोई भी मॉल है तो वो अपना कैटालॉग हर एक घर पे देके जाते हैं. वो जो हाउस होल्ड लोग रहते हैं दे कॉल ऑन दी टारगेट और वॉलमार्ट नंबर और प्रोडक्ट आइटम नंबर लिखवा देते हैं और वो उनके घर पे डिलीवर हो जाता है. तो दिस इज अगेन वन ऑफ दी बेस्ट वे. एक ही बार आपको कैटालॉग बनाना है, उसके बाद यू विल जनरेट रेगुलर इनकम ऑन दैट. SEO is again nice tool. This is called as search engine optimization. इसमें सर many people they are writing their own blogs.
या फिर वो अपने साइट का कीवर्ड मैनेजमेंट ऐसे रखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को, सपोज जैसे ही मैं एमबीए सर्च करती हूँ, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज के वेब पेजेस आ जाते हैं और बहुत सारे कंपनीज के ऐड भी आ जाती है, एंड एज यू क्लिक इनटू दैट दे विल डायरेक्ट यू टू योर कंपनीज वेबसाइट। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपना साइट इस तरह से ऑप्टिमाइज करो कि जहीं कहीं पे भी कंज्यूमर को अपने नीड के अकॉर्डिंगली सर्च करेगा तो वो सीधा आपकी साइट पे डायरेक्ट होगा, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम टेलिंग यू, ओके, एंड दिस विल अट्रैक्ट द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पे वो कोई भी पेड वाला सिस्टम नहीं है, ओके। इंटरनेट डिस्प्ले बता दिया मैंने, कीवर्ड ऐड बता दिया। कीवर्ड ऐड भी ऐसा ही रहता है, जैसे मैं शूज सर्च करती हूँ, सबसे पहले वो फ्लिपकार्ट वाले और बाकी अमेजोन वाले अपने सारे ब्रांड्स के शूज डिस्प्ले हो जाते हैं ना नीचे, दैट इज द कीवर्ड ऐड। So all these are methods which like all the new entrepreneurs they can use so that they can market their product in lesser cost. Over to you, sir. Okay. Yeah, it was very well explained with lots of examples. Because earlier the days I remember when any organization wanted to give the advertisement or branding image, they have 4 or 5 options like press media, print media, or the banner advertisement, and the leaflet insert into the newspapers and all. Of course, I don't deny their importance, but they are the costly affairs. Yes. So that days have not gone, but yeah, a lot of because of the digitalization, the transformation have been taken place. So now the SEO, the Google ad, the Facebook ad, the WhatsApp messages, email marketing, recommendation letters, as well as influential marketing, lot of other Yes. unsung part have been discovered and invent so that it can goes to the various stakeholders in a very quick span of time and with a very less cost. Okay, so thank you so much first of all for sharing your valuable knowledge into this. Now moving toward my next question that I would like to ask is, uh, see, we always see the competitors. We always wanted to see their updates, their ongoing activities, their vision, their any future plan, and we always somehow get scared or wanted to, always have a curiosity what they are doing. But now, with the passage of the time, I would like to understand: is there any chance that one company to promote its business by collaborating with other competitors? Please share your view, Dr. Swati. Yes, sir. Yes, sir. This is again a very unique point that you have highlighted, क्योंकि देखो हर किसी का दिमाग इसी डायरेक्शन में चलता है कि अगर सरवाइव करना है तो वी हैव टू किल अदर कॉम्पिटिटर्स, है ना। ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एंड इवन द बिग ब्रांड्स टिल डेट दे ऑल बिलीव इन कंपटीशन। अगर एंड आइए, समहाउ ये भी लग रहा है डॉक्टर स्वाति की वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब 4-5 पैरामीटर हाँ जहाँ पे रख रहे हैं कि वही ये है। मेरे कॉम्पिटिटर है और उसके सी, बावजूद वो कुछ सोचने की कोशिश तक नहीं कर रहे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस सर, दिस इज द नाइस पॉइंट यू हैव हाईलाइटेड। एंड मैं बोलती हूँ कि सर ये सिर्फ अपने मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इवन रियल लाइफ में भी आप देखोगे ना, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में, इवन स्टूडेंट के अपनी खुद की स्टूडेंट लाइफ में, सब लोग यही देखते हैं कि भाई वो मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा, एंड बाय बीटिंग हिम आई विल विन द रेस। सबके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये चीज लॉन्ग टर्म में नहीं चलती है। इफ यू वांट टू ग्रो सोसाइटी एज अ होल, मतलब कि अगर आपको पूरे समाज को साथ में लेके ऊपर लेके आना है ना, तो आपको वो कोऑपरेशन का फीलिंग होना चाहिए। तो rather than being competitive, I feel that cooperation is the concept which every human being should adopt, और इवन कंपनीज को भी करना चाहिए। अभी जैसे ये कोका कोला और पेप्सी का वॉर अपने को पता ही है, जैसे ही पेप्सी कोई सेलिब्रिटी लेके आता है, कोका कोला दूसरा लेके आएगा, एंड दे ऑल ट्राई टू बिलिटल ईच अदर। इवन गुड डे और पार्ले के बीच में भी वॉर चल रहा है। तो ये एडवर्टाइजिंग वॉर, इवन बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी ब्रांड, कम ऑन, दे आर कैटरिंग टू देयर हाई एंड कस्टमर, वो लग्जरी ब्रांड है,
वो भी इसी रैट रेस में लगे हुए हैं कि भाई अपने कॉम्पिटिटर को मारो एंड विन दी मार्केट. But I feel that they should think of being cooperative with each other, and by that way somewhere they both can survive and they both can flourish in near future. I believe that. I will it is called as co branding sir in technical language. हमारे मार्केटिंग में इसको बोलते हैं co branding. अगर एग्जांपल से समझाऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा. जैसे कि Spotify ब्रांड सबको पता है. This brand started sir before few years only. उसको उतने कुछ ज्यादा साल भी नहीं हुए हैं. एंड अगर आप 2020 का उनका देखो ना तो सर 144 मिलियन सब्सक्राइबर्स Spotify has captured. एंड इतने कम टाइम में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर लाना, इट इज नॉट दैट इजी. और वो भी क्या है, वो किस तरह का प्लेटफॉर्म है? इट इज जस्ट म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज. और मार्केट में ऑलरेडी गाना.com, दिस दैट, देयर आर ऑलरेडी एन नंबर ऑफ ऐप जो आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो आप आराम से सुन सकते हो. Still Spotify entered and they are able to catch hold of such a large fraction of customers under that. तो उन लोगों ने क्या किया? को ब्रांडिंग किया. स्पॉटिफाई वो भी एक स्टार्टअप है. और एंड उबर यू नो एक टैक्सी एग्रीगेट है. इट इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन book the cab and you can commute from one place to another. उबर भी एक स्टार्टअप है. तो उन दोनों ने सोचा कि why not to have the collaboration with each other, और किस अपन ऐसा क्या करें कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सके. तो स्पॉटिफाई और उबर वालों ने कोलैबोरेट करके को ब्रांडिंग किया. एंड जैसे ही अगर आप स्पॉटिफाई का, अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है एंड एज यू आर बुकिंग दी उबर, तो उबर जैसे ही आता है, एज यू ओपन दी डोर ऑफ उबर, आपके अंदर स्पॉटिफाई के अंदर कुछ प्लेलिस्ट होती है. जैसे ही आप वो प्लेलिस्ट प्ले करोगे, as you open the door and you sit in the car, that playlist will start. तो उबर ने सोचा कि हमको हमारे कस्टमर की राइड थोड़ी एंजॉयबल करनी है, तो वो कुछ भी सॉन्ग बजाएंगे और कस्टमर को पसंद आएगा वो जरूरी है नहीं, है ना. दिस इज एवरीबॉडीज टेस्ट इज डिफरेंट. तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे कस्टमर की राइड थोड़ी एंजॉयबल हो जाएगी. और इवन स्पॉटिफाई वालों ने भी सोचा कि हम दोनों साथ में प्रमोशन कर पाएंगे तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा. हमको जो लोग उबर यूज करते हैं उनके कस्टमर्स के दिमाग में भी हमारा थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा. तो दे बोथ आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ईच अदर. और उनका एक बहुत अच्छा प्रिंट एड भी ये रहा. सी, दिस इज द प्रिंट एड दे गेव आफ्टर हैविंग द को ब्रांडिंग. तो उबर एंड स्पॉटिफाई करके इस तरह से उन लोगों ने प्रिंट एड दिया था. So likewise, there are n number of ways which you can actually think of, and two brands can collaborate with each other and they can do wonders in market. Over to you, sir. It was such a informative, the insight, because always we have an experience, and it's been taught also when we were studying the marketing subject, that keep an eye on your competitors. But now with the examples, as you mentioned about the Uber and the Spotify and other examples also, that the days have changed. You do not have to see your competitor as a competitor. Yes. Why can't something better we can do by joining and associating with each other? So that day also have come, and these are the very important elements in the branding strategy, and putting ahead, joining together and achieving the mission together. Yes. So as you mentioned, Dr. Swati, in your speech, that branding, people have a myth that branding is a costly affair, and there must be having a kind of the some amount together, some amount we have to make separate for the branding as an expenditure. So the young enterprise, the startup, as I mentioned earlier, they are into the POC level, or they are into the designing of their business model. That point of time, the finance is a major their major constraint for them. So for the young enterprise, do they have to compulsorily allocated a separate budget for the marketing and the branding? Or with the smart strategy, with the some of the examples of the smart strategy, they can very well execute their product and the services and make visible to the target audience. Can you please share quickly some examples
Like you shared the examples of Uber here. If you have some examples of smart strategies in a less cost for the branding. Yes, sir. There are so many nice strategies. As I said earlier, also digital marketing is one of the best way out of that. And even, sir, another way is called as guerrilla marketing. Now, what is guerrilla marketing? We always feel that if we want to approach our audience, मेरे को टेलीविजन में 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का स्लॉट परचेस करना ही पड़ेगा. तो एंड यू नो कि इट इज कॉस्टिंग लाइक लैक्स ऑफ रुपीज. किसी सेलिब्रिटी को हायर करूंगा तभी मेरा कस्टमर के दिमाग में रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगा, उनको ऐसा लगता है. बट अभी वो चीजें काफी आउटडेटेड हो चुकी है. इवन मेरा जो पीएचडी का था उसमें भी सर, अगर आप सर्वे में देखोगे ना, तो आई आस्क कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का आपकी परचेसिंग पे कितना इम्पैक्ट होता है. एंड परसेंटेज अगर आप देखोगे तो सर, आउट ऑफ 100 ओनली 2% पीपल आर सेइंग कि हमको फर्क पड़ता है कि ये प्रोडक्ट या ये ब्रांड कौन एंडोर्स कर रहा है. तो अभी लोगों को ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हु इज एंडोर्सिंग द ब्रांड, या फिर वो सेलिब्रिटी देख के अभी प्रोडक्ट लेने जाते हैं. वो काफी आउटडेटेड चीज हो गई है. सिर्फ सेलिब्रिटी एंड आपको एक तरह का मेमोरेबिलिटी दिला सकता है, पर प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए मोटिवेशन नहीं दिला सकता. एंड दैट इज व्हाई अभी ये जो गोरिल्ला मार्केटिंग है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अनकन्वेंशनल मार्केटिंग. कन्वेंशनल तो अपने को सबको पता है कि टीवी में ऐड दो, न्यूज़पेपर में ऐड दो. बट अनकन्वेंशनल मोड्स आर नाउअडेज ट्रेंडिंग एंड इट इज प्रिवेलिंग. उसमें से एक इट इज वन ऑफ द टाइप, इट इज कॉल्ड एज गोरिल्ला मार्केटिंग. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए. यू जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ द वेज कि मैं ऐसा, मतलब जैसे आप मार्केट में बाहर निकलते हो, आप स्ट्रीट में निकलते हो, ट्राई टू ऑब्जर्व द सिनेरियो कि मैं कहाँ पे क्या करूँ कि मेरी कंपनी का प्रमोशन हो, या फिर लोग मेरी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा देखें या उनको अवेयरनेस क्रिएट हो. तो दिस इज द नाइस एग्जांपल. ये जो किटकेट है, उन लोगों ने ऐसा सिंपली जो रोड साइड पे इस तरह से बेंचेस पड़ी रहती है, उसको उन लोगों ने कलर से पेंट करके बिल्कुल चॉकलेट का शेप दिया है. इट लुक्स एज इफ इट इज अ रियल चॉकलेट. एंड यू वोंट बिलीव, सोशल मीडिया पे देयर आर सो मेनी पोस्ट विच आर फ्लडेड विद दिस. लोग इस पे बैठ के हमेशा फोटो क्लिक, सेल्फी क्लिक करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, एंड देन दे पोस्ट इट ऑन देयर सोशल मीडिया. तो अब इसमें आपको कुछ ज्यादा पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. सिंपली कोई पेंटर चाहिए और थोड़ा बहुत कलर चाहिए. आपको लगा कि ये ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से मेरे प्रोडक्ट के शेप में पेंट करके, जो मार्केट में बाहर ही पड़ा है, ऐसे फालतू में पड़ा है, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट का शेप देके उस तरह से क्रिएटिवली कुछ डिजाइन कर सकते हो कि लोगों को देखने में मजा आए, उनको वो चीज शेयर करने में मजा आए. इवन अनदर गोरिल्ला मार्केटिंग इज डन बाय द मैकडोनल्ड आल्सो. अब देखो, ये रोड पे वाइट वाइट स्ट्रिप्स तो हर जगह पे होती ही है ना. सबने देखी होगी, सबने उस पे चले भी होंगे. पर किसी के दिमाग में ऐसा आया था कि क्या इसको, ये जो व्हाइट स्ट्रिप है, उसको मैं एज अ फ्रेंच फ्राइज यूज कर सकता हूँ. एंड ओनली मैकडोनल्ड पीपल थॉट इन दिस वे. दे पेंटेड दिस व्हाइट स्ट्रिप्स इन येलो कलर और नीचे उनका मैकडोनल्ड का पैक सिंपली कलर से पेंटिंग किया है. एंड इसके भी पिक्चर्स काफी वायरल है अगर आप देखोगे तो. दैट इज व्हाई आई फील कि अगर आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर मार्केटिंग या ब्रांडिंग करना है ना, कुछ ज्यादा लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. विथ नॉमिनल अमाउंट जस्ट बी क्रिएटिव. आप सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मार्केटिंग हो जाए. एक और मैं आपको सर एग्जांपल देती हूँ. ये जो बसेस, ऑटो रिक्शा, वो सब चलते हैं ना, उसमें भी लोग अपना एड रखवा देते हैं, एंड दैट टू एट सच अ मिनिमल कॉस्ट. और वो बस, ट्रेन कितने जगह पे ट्रैवल करती है. पीपल आर गेटिंग, दे आर एक्चुअली जनरेटिंग अ लॉट ऑफ लीड्स आउट ऑफ दैट. और अगर आपने होर्डिंग लगाया है, सपोज अगर प्रहलाद नगर की चौकड़ी पे लगाया है, तो ऑब्वियसली जो लोग प्रहलाद नगर की चौकड़ी से पास ऑन होते हैं वही लोग देखेंगे.
लेकिन ये जो बस है वो तो कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, कितने लोग उसको देखते हैं। ऑटो रिक्शा है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो उसके आप 1/4 प्राइस में ज्यादा विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। ये तो ऐसा हुआ ना। तो आई बिलीव कि क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मनी whenever you think of doing the marketing for your company. Over to you, sir. Yeah. Yes, Dr. Swati. These are the best example of the guerrilla marketing which you have mentioned. It is more about to engage, involve, and have the memories with the features of the product or the service of the organization. And if you connect people with the emotions and their have the long-lasting memory, it will not go away anywhere. And people will come to you and they will be your loyal customer always. So my next question Dr. Swati, I would like to understand if is there only a product and the services can be branded, because these days in the organization there are a lot of more things are there which we have seen, the brand ambassadors we have seen, and we have seen the unique experiences the companies are giving. So still only product and services are the only tools for the demonstrations and the branding, or there are other tools also which can be branded. Uh, yes, Deep sir, this is only marketer can think in this way. आई एम टेलिंग यू, अगर आप मार्केट में कोई भी चीज बेचने निकले हो एंड इफ यू हैव एनीथिंग इन योर हैंड विच यू वांट टू ऑफर टू योर कस्टमर, वो आपका प्रोडक्ट है, उसका मार्केटिंग हो सकता है। तो अगर ये लोगों को कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि सेल फोन, लैपटॉप, तो उसी का ही ब्रांडिंग पॉसिबल है, कोई कंपनी है उसी का ही ब्रांडिंग हो सकता है, तो दैट इज अ रॉन्ग मोशन। इवन किसी पर्सन का भी ब्रांडिंग पॉसिबल है, उसको हमारी मार्केटिंग की लैंग्वेज में पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। एंड द ऑसम वेज आर अवेलेबल टू डू दैट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप डेफिनेटली बोलोगे तो आई कैन टॉक ऑन दैट ऑल्सो। मेरे को अभी दिमाग में आया कि अगर क्योंकि आजकल क्या है, देर आर सो मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड देर आर सो मेनी पीपल who want to create the brand name of themselves, you know, they want to publicize their name in market। तो पर्सनल ब्रांडिंग के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्टिक्स है, आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दैट ऑल्सो। तो सर इवन पर्सन का भी ब्रांडिंग पॉसिबल है, प्लेस का भी ब्रांडिंग होता है। ये जो अमिताभ बच्चन गुजरात आओ कुछ दिन गुजारो गुजरात में, वो बोल रहे हैं, तो एक्चुअली ही इज डूइंग द मार्केटिंग ऑफ व्हाट, अ प्लेस, गुजरात। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेस मार्केट, मतलब प्लेस का भी मार्केटिंग पॉसिबल है। इवन आइडिया कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। ये जो गवर्नमेंट हर बार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला रही है, बहुत सारे ऑटो रिक्शा पे और बस पे आपको ये आइडिया, ये स्लोगन लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां पे वो लोग क्या बेच रहे हैं, दे आर जस्ट सेलिंग वन आइडिया। उनके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, बट दे सिंपली आर डूइंग द मार्केटिंग ऑफ दैट आइडिया। और एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर इफ देयर आर बॉयज इन माय ऑडियंस दे कैन एक्चुअली रिलेट इट। विराट कोहली है एंड रोहित शर्मा है, ठीक है। अभी दोनों का अगर आप ब्रांड वैल्यूएशन देखोगे तो विराट कोहली का है $237.5 मिलियन और उसके ऑपोजिट में रोहित शर्मा का है हार्डली $23 बिलियन, राइट। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। और मेरे को पता है कि उस बंदे की भी, रोहित शर्मा की भी कैपेबिलिटी इज समवेयर इक्विवेलेंट टू विराट। ऐसा नहीं कि क्योंकि विराट से भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बट इवन रन्स के अमाउंट में देखा जाए तो उसके रन ज्यादा है रादर देन विराट कोहली। फिर भी विराट का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है और उसका क्यों इतना कम है? बिकॉज ही इज एबल टू डू द पर्सनल ब्रांडिंग। उसने अपने आप को पब्लिसाइज करके एक ब्रांड इमेज बना दिया है, एक यूनिक ब्रांड क्रिएट कर दिया है कि इवन दूसरे जितने भी बिग बिग ब्रांड्स है उसको एज एन ब्रांड एम्बेसडर लेने के लिए मरते हैं और दे आर ऑफरिंग इन करोर्स ऑफ रुपीज जस्ट टू शूट वन एड। तो दैट इज द डिफरेंस। अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है,
अगर आपको अपना खुद का ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करना है तो पर्सनल ब्रांडिंग इज रिक्वायर्ड. सो एट दी मीन्स ओवरऑल आई वांट टू से कि सिर्फ प्रोडक्ट का ही और कंपनी का ही ब्रांडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है. इवन पर्सन का भी ब्रांड हो सकता है, प्लेस का भी, आइडिया का भी. जो भी चीज आप मार्केट में बेचने के लिए निकले हो, अगर कोई स्टूडेंट किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठा है फॉर अ जॉब सिलेक्शन, तो उस टाइम पे वो स्टूडेंट अपने आप को बेचने बैठा है ऐसा समझो. उसको अपना पर्सनल ब्रांडिंग उस तरह से करना है, उस तरह से अपना मार्केटिंग करना है उसके सामने कि वो आपको खरीद ले. So that is the branding, right? And it can be, it is applicable on anything that you are ready to sell to your seller. Over to you, sir. Okay, thank you, Dr. Swati. Now, my next question is very simple, but very important also, because most of the time people are thinking, let my idea get into the POC level, let the proof of concept get into the business model level, and when everything will get ready, when I have an organization, when I have a well-established structure, that point of time we will think about the marketing, branding, advertising, and all. So how you correlate that myth, that part, and as per you, how the branding and marketing role is very important since the inception of the idea generation? Yes, sir. Very good question, because this is the mistake done by every startup. I can say that. सारे स्टार्टअप यही सोचते हैं कि पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, एक बार प्रोडक्ट में कुछ कस्टमर्स को ऑफर करना शुरू कर देता हूँ, थोड़ा बहुत कस्टमर बेस बढ़ेगा, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा, एंड देन मैं अच्छा सा ब्रांडिंग या मार्केटिंग करूंगा. बट दैट इज द मिसकंसेप्शन एवरीबॉडी इज हैविंग. और ये नोशन बिल्कुल वर्क नहीं करता है, क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है एंड बिफोर यू अप्रोच योर कस्टमर, उसके पहले से ही आपकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए. बिकॉज एज पर योर स्ट्रेटेजी आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या ऑफर करना है अपने कस्टमर को. पहले ऑफर कर दिया, कुछ भी रैंडम सी इमेज क्रिएट होगी, उसके बाद भी अगर आप चाहोगे ना तो वो चीज इरेज करना कस्टमर के माइंड से डिफिकल्ट है. एंड दैट इज वाई आपको पहले से क्या करना है, एसटीपी करके रखना है. ना व्हाट इज दिस एसटीपी? इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अब देखो, सेगमेंटेशन इज व्हाट, आपका जो प्रोडक्ट है यू कांट ऑफर इट टू ऑल द कस्टमर्स विच आर आउट देयर इन द वर्ल्ड, है ना? क्योंकि वर्ल्ड एक देखा जाए तो इट इज अ हेट्रोजीनस मार्केट. उसमें सारे लोग अलग अलग एज के हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन, दे ऑल आर फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर, सबका जेंडर भी अलग है. तो ऐसे सिनारियो में पहले आपको क्या करना है कि अपने हेट्रोजीनस मार्केट को होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड करो. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज कि आई वांट टू कम अप विद अ प्रोडक्ट विच इज इनटू अ पर्सनल केयर, है ना? ये जो क्रीम, शैम्पू वो सब होते हैं वो. तो पहले मैं मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को ऑफर करूँ, उससे पहले मेरे को सेगमेंट कर देना है कि मेरे को कौन से एज ग्रुप वाले कस्टमर को अटैक करना है. एंड फिर वो सेगमेंट करने के बाद आपको कुछ ग्रुप्स उठा लेने हैं, कुछ ग्रुप्स को टारगेट करना है. सपोज कि अगर मैंने जेंडर वाइज सेगमेंट किया तो दो सेगमेंट मेरे पास आएंगे. एक पूरा सेगमेंट होगा जिसमें मेल होंगे, दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें फीमेल होगी, और तीसरा शायद ट्रांसजेंडर का अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो. तो 3 सेगमेंट आ गए. अभी ऐसा नहीं है कि मैं तीनों को अटैक करूंगी, वो पॉसिबल नहीं है. एक प्रोडक्ट है वो सबकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता. अगर आपको पता हो तो फेयर एंड लवली गर्ल्स के लिए है, और अभी फेयर एंड लवली मेंस के लिए अलग रेंज लॉन्च किया है. उन लोगों ने एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और शाहरुख खान लिटरली कह रहा है कि लड़कियों वाली क्रीम मत यूज करो, है ना? Why? Because they want to cater to only one segment, and that too only males. तो आपको भी ऐसा करना है कि सेगमेंट में डिवाइड करो, किसी एक ग्रुप को टारगेट करो, एंड देन टारगेट करने के बाद भी आप एक यूनिक से पोजीशन क्रिएट करो उनके माइंड में.
अब जैसे कि क्रीम के अंदर फेयर एंड लवली भी है, डव भी है, बट द पोजिशनिंग ऑफ बोथ द ब्रांड इज डिफरेंट। फेयर एंड लवली ने पोजिशनिंग कैसा किया है कि अगर आपको गोरा होना है तो यूज फेयर एंड लवली, राइट? और डव ऐसा बोलता है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा गोरा वोरा फेयरनेस, दे विल से with the help of dove your skin will become soft and smooth, okay? So that is the different positioning, wo the same type of product, the same type of product category, but two different brands, लेकिन दोनों ने अपन अपना अलग से positioning किया हुआ है। तो in the same way आपको भी अपना segment, अपना target और एक यूनिक पोजीशनिंग डिसाइड करके रखनी पड़ेगी, और फिर ही आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके बाद ही कस्टमर को अप्रोच करना है विद दैट मैसेज। क्योंकि जैसे ही आप ये एसटीपी करोगे, आपको अपना स्लोगन ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रांड का नेम और कलर ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि डव वालों ने अपने ब्रांड के अंदर ऐसा स्वान जैसा पहले दिखाते थे, एकदम व्हाइट स्वान, है ना, और पूरा व्हाइट बैकग्राउंड उनका होता था विथ लाइट ब्लू कलर लोगो। तो ये वो पूरा मिल्की टेक्सचर देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उससे आपकी स्किन सिल्की सॉफ्ट होगी। तो इसीलिए आपके सारे ब्रांड एलिमेंट ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। इसलिए पहले ये करो एंड देन यू ट्राई टू अप्रोच योर कस्टमर। तो फिर कस्टमर को कोई डाउट नहीं होगा, मैसेज क्लियरली उनके माइंड में जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह के कस्टमर के लिए है और उससे मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और एक और चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फीलिंग के साथ समझना आप लोग। कभी भी फीचर्स प्रोडक्ट के हाईलाइट मत करो। फीचर्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि सेलफोन के अंदर इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने इंचेस की वाइड स्क्रीन है, ये अगर आप सिंपली फीचर बॉम्बार्ड करोगे ना, तो किसी भी कस्टमर को मजा नहीं आएगी और कोई भी रिलेट नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमारे फोन के कैमरे से नाइट मोड में भी ऐसे आते हैं, मतलब पिक्चर क्वालिटी ऐसे पिक्चर क्लिक होते हैं, तो वो सबको समझ में आता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि यू रिवील द बेनिफिट्स एंड नॉट द फीचर्स। अगर मैं मेरी क्रीम में बोलूंगी कि 24 एसपीएफ है, आप यूज करो, अरे कस्टमर को नहीं पड़ी है और समझ में भी नहीं आ रहा मेरे को कि तेरी क्रीम में कितना एसपीएफ है। आप कस्टमर को ऐसे ही समझो कि दे आर लेमैन, उनको ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, और सिंपल लैंग्वेज में कि हमारी क्रीम यूज करोगे तो सनबर्न नहीं होगा या डार्कनेस नहीं आएगी, तो वो बेनिफिट है, वो सबको समझ में आएगा। लेकिन 25 एसपीएफ 50 एसपीएफ वो किसी को समझ में आता नहीं है। तो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज शो द बेनिफिट्स फर्स्ट एंड द फीचर्स ऑन सेकेंडरी एस्पेक्ट। सीधा फीचर बॉम्बार्ड करोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। और अगर सर आपकी परमिशन हो तो आई वुड लाइक टू शो वन वीडियो, एक एड दिखाऊंगी ना तो लोगों को ज्यादा आइडिया आएगा। Yeah, please. After that, we have only one question. Okay, looking no toward the worries. time constraint, so we can go further with the video. ठीक है, तो मैं एक आईफोन 11 का अभी एक अच्छा सा एड देखा था मैंने, तो आई वुड लाइक टू शो दैट हाउ दे आर टेलिंग कि हमारे कैमरे से नाइट मोड में भी इतना अच्छा वो क्लिक होता है, रादर देन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल प्ले दैट वीडियो। We can do one thing, Dr. Swati. We can go to the next question in the time. ओके, ठीक है, नो वरीज। हाँ, तो इन शॉर्ट आप लोग देख लेना, आईफोन 11 का बहुत ही अच्छा एड है। एंड उस एड में वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड का ऐसा पिक्चर क्लिक करूं कि उसका एक्स भी उससे जेलस हो। तो आईफोन 11 से ऐसे पिक्चर क्लिक होते हैं इवन इन दी नाइट मोड ऐसा। तो वो लोग ये नहीं बोलते, और लिटरली आईफोन 11 का 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन पूरे एड में उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि हमारा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे मेरे आईफोन 11 से ऐसे पिक्चर क्लिक होंगे कि दूसरे लोग जेलस हो जाएंगे। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट फीचर विच दे आर हैविंग इन देयर प्रोडक्ट। तो ये एज एन मार्केटर अपने को ध्यान रखना है कि यू शोकेस योर बेनिफिट एंड डोंट बॉम्बार्ड फीचर सो मच टू योर कस्टमर, राइट? यस सर, ओवर टू यू।
Yeah, it is really, I am finding the session full of examples of the various organizations, multinationals, national company, even the regional, startups also. You have given the examples. So, looking toward the time constraint, this is the last question which I would like to ask you. See, Dr. Swati, we all know we are living in a VUCA world, volatility, uncertainty, and ambiguity. And any point of time, you may have the unwanted competitor. Any point of time you may have unfavorable the policies which may harmful to your product or the services. So in the VUCA world, do we have any tips for our young entrepreneurs to have the foolproof branding, we can say, so that though the situation, though the time may change, but it won't that much affect, negatively affect on on their product, on their services, so that they can consistently work and they can steadily grow even with the unfavorable situation. Sir, this is again really important because when we start doing the marketing and branding, it happens that the things are changing day by day, you know. In this changing scenario, if I say that you don't have to do anything, means you don't have to change your marketing strategy, then that would be a wrong notion. क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, यू ऑल्सो हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको मार्केटिंग रिसर्च करना ही करना है। इवन ये आईफोन वालों ने तो लिटरली अपना, ये जो एप्पल वालों ने, दे हैव हायर्ड देयर ओन मार्केटिंग रिसर्च फर्म। दे आर डूइंग दिस सर्वे ओवर लाइक एट एवरी क्वार्टर। वो अपने कस्टमर का हर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक सर्वे करते हैं, एंड दे ट्राई टू नो द व्यू पॉइंट ऑफ दैट कस्टमर कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं। जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, they incorporate feature in their phone, and then they launch a new iPhone or a new cell phone for them। तो ऐसा है कि सर आपको अपडेट करना रहता है along with the time। तो उसके लिए एक कोई मतलब आइडियल स्ट्रेटेजी आपने और एक फुल प्रूफ प्लान पहले से आपने सोच के रख दिया और वो लाइफ टाइम तक चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन सिंथॉल वालों ने भी अपने आप को रीपोजिशनिंग किया है। अगर आप देखोगे तो पहले सिंथॉल का ऐसा पोजिशनिंग था सोप का कि इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी स्किन देन इट इज अ फैमिली सोप फॉर यू। लेकिन अगर अभी नया जो, अगर आप सिंथॉल का ब्रांड पोजिशनिंग देखोगे ना, तो दे हैव गिवन अ न्यू लाइफ टू देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दे हैव गिवन अ न्यू लाइफ टू द ब्रांड। इट इज फुल ऑफ मेंथोल एंड सर को सन को कर दे डाउन वाला उनका बहुत अच्छा कैंपेन है। अगर आप ऐड देखोगे तो आपको पता पड़ेगी। तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हर किसी कंपनी का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, और फिर हर किसी को डिक्लाइन फेज में आना ही पड़ता है। तो डिक्लाइन फेज में ना जाओ, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम सर्वे करके यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, यू हैव टू अपडेट योर प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एज वेल एज प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। आपको ये ऑल 4 पीस टाइम टू टाइम चेंज करने ही पड़ेंगे। पर एक चीज जो आप कर सकते हो वो क्या है कि ट्राई टू हैव इमोशनल बॉन्डिंग विथ योर कस्टमर्स। एक इमोशनल कनेक्शन बिठा दो अपने कस्टमर के साथ। वो चीज लाइफ टाइम तक लोग नहीं भूलेंगे, या वो बॉन्डिंग कोई भी कस्टमर नहीं भूलेगा। अब वो कैसे अभी बना सकते हो, उसके भी बहुत सारे वेज हैं। वन थिंग यू कैन डू इज हैव CRM। इट इज इन मार्केटिंग, इट इज कॉल्ड एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब कि अगर आपने फास्टैग का स्टोर विजिट किया होगा तो वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। तो वन डे आई ऑल्सो विजिटेड फास्टैग, और उन लोगों ने मेरा डेटा वेटा लिया, एंड लिटरली फिर मेरे बर्थडे पे उनका मैसेज आया था कि लाइक वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड बहुत ब्यूटीफुली रिटर्न उन लोगों ने एक मैसेज किया था। and I felt so good as a person, क्योंकि because we are also the human being and we have got emotions, right। तो देखो ये एक बहुत ही सिंपल और छोटी सी चीज है जिसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बट एक इमोशनल कनेक्ट आपको आपको अपने कस्टमर के साथ बिठाना ही पड़ेगा।
तो ये एक आप CRM कर सकते हो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। इवन अगर आप ये देखोगे ना तो मैरियट होटल, सी इट इज सच अ बिग ब्रांड है ना, उनको कहाँ CRM की जरूरत है ऐसा लगता है, पर फिर भी उनका मैंने ये देखा था एड में, उनका ग्रैंड ओपनिंग हो, उनकी 25th एनिवर्सरी हो, दे लिटरली इनवाइट ऑल देयर ओल्ड कस्टमर इनटू दैट सेलिब्रेशन। तो उनके जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, सपोज कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो कहीं पे रहे होंगे, या फिर अपन ने सपोज ही मैरिड के किसी भी फंक्शन को अटेंड किया होगा, तो वी विल डेफिनेटली स्प्रेड अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट दिस ब्रांड टू अदर्स फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट बैठ जाता है अपना उस ब्रांड के साथ, और फिर कभी भी उसके बारे में बुरा बोलने की अपने को इच्छा नहीं होगी। तो इन दिस वे यू कैन हैव CRM इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, और इसके साथ साथ थोड़ा आपको अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी उस तरह से वॉक करना होगा कि यू यूज अ लॉट ऑफ, यू पोर अ लॉट ऑफ इमोशन इनटू दैट, और जो एड आपके अंदर इमोशन अराउज करेगी ना, वो एड आप कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको देखना, जो एड सबसे ज्यादा ह्यूमरस अपील यूज करती है, जैसे कि सेंटर फ्रेश, कैसी जीभ लपलपाई वाला, वो एड इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो फनी कि मेरे को वो ब्रांड ऐसे याद हो जाता है अपने को, है ना। Yeah. So I must say the session is full of learning, having lots of examples, catering the various sectors. One is like KitKat and the Amul. Other many examples you have given and shared the real life stories of the successful enterprising and how the brand actually plays a pivotal role, act as an architecture for the budding entrepreneurship and the enterprises. So hereby I would like to convey my sincere gratitude to Dr. Swati to spare your valuable time and knowledge with our audience. So first of all, kindly accept our sincere thanks to you. I would like to convey my message to the audience hereby that Swarnim Startup and Innovation University is always taking an initiative uh, to support and encourage the budding entrepreneurs. Like startup is having a very vast subject. They are having the many pillars like finance, legal, outreaching, co-working space, then the company formation laws, uh, uh, legal formalities, branding, marketing, and many parts are there. So we would like to welcome all the budding entrepreneurship at our Swarnim Incubation Center. If they have any doubt or the query or the guidance they require, we have the mentors from the industries also. So you are most welcome to visit Swarnim Incubation Center any point of time when you feel so to have any guidance, support, or kind of the uh, any support required from the incubation center. So, with looking toward the constraint of the time, I would like to end the session hereby. But just a small brief about the upcoming activity. That is, we are associating with the CIMSME for the Global Startup and Innovation Summit scheduled on January 28, 29, 30, 2021. I am appealing and requesting all the stakeholders to join with this session because more than 30 countries, the speakers are going to join from more than 30 plus countries. More than 900 plus incubators are going to join with this program, and Startup India is also associating with this. So I would like to request all the stakeholders to get connected with us, stay with us, and together we can have a fruitful journey of the entrepreneurship. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.